करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपजी ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਨ ਵਿਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਏ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਪਾਖਿਆ ਪਉ ਪਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਜਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਆਪਿਆ ਨ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾ ਬਿਨ ਭਾਨੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੀ ਸਿਰ ਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰ ਮਾਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ
ਮਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਨੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰੇ ਜਗਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। तेहा कोई न सूझई जे तिस गुण कोई करे। ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਰ ਸੁਣਿਐ ਤਰਪ ਤਵਲਾ ਆਕਾਸ। सुनिए दीप लो पताल सुनिए पोए न सके काल। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिए मुख सलाह हनुमंद। ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਐ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। सुनिए पढ़ पावे मान सुनिए लागे सही ध्यान। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। सुनिए सरा गुना के गा सुनिए शेख पीर पाछा। ਸੁਣਿਐ ਅੰਨੇ ਪਾਵੇ ਰਾਸ ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਕਾ। नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। कागद कलम न लिखन हार मन्ने काबे करन विचार। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सकल भवन की सुध। ਮੰਨੇ ਮੋਚੋ ਟਾਣਾ ਖਾਏ ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से ती संबंध। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। मन्ने पावे मोख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार। ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਵੇਖ। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। पंचा सोहे दारा जान पंचा का गुर एक ध्यान। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। कौल धर्म दया का संदोख था प्रख्या जिन सूत। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਤਿਆਰ ਤਬਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ। धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ए लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया केता होए। ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲੇ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਪੂਤ। पीता पुसाओ एको को आओ तिस्ते होए लख दरियाओ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਣ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप संख भाव संख पूजा संख तपताओ। संग ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। संख सूरमो पख सार संख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहा विचार वारण जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख आंध घोर असंख चोर हराम खोर। संख मर कर जाए जोर संग अलवड़ त्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़िया गुड़े विराहे। संख मलेश मल पख खाए संख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार वारण जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोभ। असंख सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान। जिन्हें लिखे तिसर नाय जी फरमाए तिप्त पाए। जेता कीता तेता नाव विंदा वे नाई को थाव। कुदरत गमन कहा विचार वारणा जामा एक बार। जो तुझ भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। परिये हाथ पैर ठंडे पानी तोते उतरस खे। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन रहत होए। परिये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग। उन्नी पापी आँख नाहे कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ नानक उपनी आवो जाओ। धीरज तप आदत दान देखो पावे तिलका मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे में नाही कोए बिन गुण कीते भक्त न होए। स्वस्थात पानी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिर उत्ती माँ कवन जितो आकार। देर न पाइया पंडिती जे होवे देख पुराण। वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान। चितवार न जोगी जाने रुत मान
ताहु न कोई। जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी क्यों जाना। नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाना। वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे। नानक जे को आपको जाने अगे ज्ञान आसो है। पाताला पाताल लख्या आगासा आगास। कोड़क कोड़क पाल थके वेद कहनिक बात। सहज 18 कहन कते बासलू एक धात। लिखा होए ता लिखिए लिखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला ती सुरत न पाइया। नदियां अते वा पवे समुद्र न जानिए। समुद्र सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुलना होमनी जे किस मनो न विसरे। अंत न सिफती कह नांत अंत न करने दे नांत। अंत न वेखन सुनन अंत अंत न जापे क्या मन मंत। अंत न जापे गीता कार अंत न जापे पारावार। अंत कारण कीते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। एयो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। जीवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए। केते मंगे जो दे पार केतिया गणत नहीं विचार। केते खप टुटे बेकार। केते ले मुकर पाए केते मूर्ख खाई खाए। केतिया धूप फूक सदमार लिपे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होए हो राख न सके कोई। जे को खाए को आखन पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए। आपे जाने आपे दे आखे से पी गई के। जिसनो बख्शे सिद्ध सरा नानक पातशाही पासा। मुल गुना मुल पार मुल पारिय मुल भंडार। मुल आवे मुल न जाए मुल पाए मुला समाहे। अमूल धर्म मूल देवान अमूल तुल मूल परवान। अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान। अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रे लिवलाए। आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे ज्ञान। आखे बर में आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध। आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव। केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ताक न सके केई के। जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए। जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार। सोदर केहा सोकर केहा जित वह सर्व संभाले। बाजे नाद अनेक संख्या केते वामन हारे। केते राग परिसो कहियन केते गावन हारे। गावे दोनों पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावे चित्त को पढ़ लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे। गावे इंद्र दासन बैठे देवते आदर नाले। गावे से समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सा जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले। गावन रत्नो पाए तेरे 68 तीरथ नाले। गावे जोत महाबल सुरा गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल बर भंडा कर रखे तारे। सही तुझनो गावे जोत भावन रते तेरे भक्त रसाले। और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई। रंगी रंगी भांति कर जिसी माया जन्यु पाई। कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पासा सा पास है नानक रैन न जाई। मुंदा संतोष शर्म पर चोली ध्यान की करे विभूत। चिंता काल कुआरी काया जुग दंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मान जीते जग जीत। आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश। भोग ज्ञान दया भंडारन कट कट वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रित से दवरा साध। संजोग विजोग दे कार चलावे लिखे आवे भाग। आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश। एका बाई जुगत वे आई तिन चेले परवान। एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान। ओ वेखे ओना नदर नावे बहुता ए विडान। आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया स्वे कावार। कर कर वेखे सिरजनहार नानक सचे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश। एक दो जीवो लाख होवे लाख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश। एक राह पत पड़ी चढ़िए हुए अकीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई दीस। नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस। आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगन दे न
जोर जोर न जीवन मरण है जोर, जोर न राज माल मनसोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटे संसार। जिस हाथ कर विखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। राते रुते थिते वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीव जुगत के रंग। तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथे सोहन पंच परवान, नजरी करम पावे निशान। कछ पकाई उत्थे पाए, नानक गया जापे जाए। धर्म खंड का एवं धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। केते बन में काट कड़िए, रूप रंग के वेश। केत्या करम भूमि मेर, केते केते तो उपदेश। केते इंद्र चंद सुर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन, केते केते रत्न समुंद। केत्या खानी केत्या बानी, केते पात नरेंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंतरांत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाथ विनोद कौड आनंद। धर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाट कड़िए बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे कड़िए सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की बानी जोर, तिथे होर न कोई होर। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। तिथे सीतो सीता में मामाए, ताके रूप न कथने जाए। नाव मरे न ठाके जाए, तिनके राम वसे मन माहे। तिथे भगत वसे के लोग, करे आनंद सच्चा मन सोए। साचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदन निहार। तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे ता अंत नांत। तिथे लो आकार, जिव जिव हुकम तिवे तिवकार। वेखे विकसे कर विचार, नानक कतना करड़ा सार। जट पहाड़ा तीर्थ सुनियार, हरण मत वेद हथियार। मोह कल्ला अगन तप तो, पड्डा पाओ मृत टाल। कड़िए शब्द सची टकसार, जिको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहार। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोय दाई दाया, हिले सगल जगत। चंगियाइया बुरियाइया, वाचे धर्म दूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु जपिए बारंबार बार, प्रभु जपिए प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। पी अमृत मन तन तपिए, पी अमृत मन तन तपिए। पी अमृत मन तन तपिए, पी अमृत मन तन तपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। प्रभु जपिए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान हैं। दूर दूर से संगत दर्शन करने आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई कई हफ्तों कई कई महीनों का सफर करके, क्योंकि उस जमाने में न ट्रेन होती थी न गाड़ियां, लोग पैदल सफर करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन करने आ रही है, बारी बारी से हर जगह की संगत आ रही है। और जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो मन में कई सवाल भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत अपना सवाल गुरु साहब जी के आगे रखती, गुरु साहब जी उसका उत्तर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह की संगत आई, उन्होंने माथा टेका गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और कहने लगे, पातशाह एक सवाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, पूछो, जो पूछना है निडर होकर पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, पातशाह हम पहले गुरु अमरदास जी के समय भी दर्शन कर चुके हैं। गुरु अमरदास जी के पास आए थे हम, यही संगत जो हम इस वक्त आपके सामने खड़ी है, यही सारी संगत गुरु अमरदास जी के सामने इकट्ठी हुई थी और बेनती की थी, पातशाह कोई कृपा करो, कोई सुमत बख्शो, तरस करो। तो गुरु अमरदास जी ने हमें वचन दिए थे। ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी प्यारी घटना है, बहुत शिक्षा है इसमें। कहने लगे, गुरु अमरदास जी से हमने प्रार्थना की थी, कृपा करो पातशाह, कोई सुमत बख्शो। तो गुरु अमरदास जी ने हम सबसे कहा था कि अमृत वेले उठ के 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठकर 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किया करो सब, और उसके बाद दिन में समा निकाल कर वाहिगुरु जाप में सुरत लगाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द का जाप दिया हमें। कहने लगे, हमारे लिए उस वक्त नई बात थी, पर हम सब ने वो बात मानी। अमृत वेले उठे, 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किए और दिन के समय जब भी समय मिले वाहिगुरु शब्द में सुरत जोड़ने की कोशिश की। कहने लगे, गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत समा गए, लीन हो गए, शरीर छोड़ गए। उसके बाद समय आया गुरु रामदास जी का। हम फिर आए गुरु रामदास जी के पास दर्शन करने। गुरु रामदास जी से भी ये वचन किए, गुरु अमरदास जी ने हमें ये कहा था। तो कहने लगे, जो कहा था वो करते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए, अब आपके दर्शन करने आए हैं। पातशाह छोटा मुंह है, बड़ी बात है, कहने में डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन जी महाराज ने दोबारा कहा, डरो मत, अंतर जामिए, सब जानते हैं वो क्या कहने आए। कहने लगे, जो मन में है डाउट क्लियर कर लो। कहने लगे, पातशाह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर गुरु अमरदास जी के समय से वचन मान रहे हैं। कितना समय हो गया, हमें बाणी दी गई है पढ़ने के लिए श्री जपजी साहब जी की, इतनी अमृतमयी बाणी, पर जब पढ़ने बैठते हैं मन एकाग्रचित नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द का जाप दिया हमें, पर जब जाप करने बैठते हैं मन एक पागल पशु की तरह यहां वहां दौड़ता है, एक सेकंड के लिए भी एकाग्रचित नहीं होता, मन में आंसू आ जाते हैं। पातशाह इतना समय हो गया, जीवन आधा जीवन बीत गया हमारा, अभी तक मन कंट्रोल में ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक पाठ कर रहे हैं, मन नहीं टिकता वाणी में, अमृत में वाणी है, शब्द का जाप करते हैं, सुरत नहीं टिकती। पातशाह क्या ऐसे ही मर जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो वचन मान रहे हैं गुरु अमरदास जी के, गुरु रामदास जी के भी। अब आपके पास आए, आप कुछ तर्ज करो, मन टिकना होता क्या, एक बार अनंत तो आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल साथ संगत जी हम सबके मन का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके मन में ये आता है सवाल।
कि पाठ तो करते हैं, सिमरन में बैठते भी हैं गुरु की आज्ञा मानकर, पर मन नहीं टिकता। कहने लगे पातशाह, कहने में बुरा भी लगता है, पर वचन मानने के बाद भी अगर बात ना बने तो कब बनेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो ज्ञान दिया ना साथ संगत जी, कमाल है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे के सारे, वो भी इतनी अच्छी तरह कि इसके बाद शायद ही किसी के मन में ये सवाल आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मेहर भरी निगाह से इस संगत की तरफ देखा, कहने लगे आपने सवाल पूछ ले, अब मेरे सवालों का जवाब दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आप गुरु अमरदास जी से मिले थे पहली बार, जब उन्होंने आपसे कहा था 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के करने के लिए, और दिन के समय समा निकाल कर वाहिगुरु शब्द में सुरत जोड़ने के लिए, क्या तब आपको पता था कि मन और शरीर अलग अलग चीज होती है? क्या ज्ञान था इस बात का कि मन जोड़ना होता क्या है? ये पता था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं। दूसरा सवाल किया, संगत ने जवाब दिया नहीं, हमें नहीं पता था। दूसरा सवाल किया गुरु अर्जन देव जी महाराज, क्या मन एकाग्रचित नहीं होना? तब बुरा लगता था, पता था मन एकाग्रचित होना क्या कहते हैं, मन का टिकाव क्या होता है। कहने लगे नहीं, हमें नहीं पता था। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, क्या तब तुम्हें एहसास होता था? पहले एहसास था कि हम कितने पापी हैं। अब एहसास होता है बानी पढ़ते हुए अपने पाप याद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर लगता है अपने पापों से? कहने लगे हाँ अब लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटनाएं हमारे साथ होती हैं साथ संगत जी, क्योंकि गुरबाणी आईना है। जब बाणी पढ़ते हैं अपने किए हुए पाप, जो मांस खाता है, जब पढ़ता है कि नहीं खाना चाहिए, मन डर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पाप दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि नाम ने किया क्या है तुम्हारे साथ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने जो आपको 5 श्री जपजी साहब जी के पाठ करने के लिए कहा, उसने क्या किया है? वाहिगुरु शब्द के जाप ने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। पहले तुम्हें यही नहीं पता था मन का टिकाव होता क्या है, अब तुम्हें एहसास है कि मन का टिकाव क्या होता है। पहले तुम्हें एहसास नहीं था कितने पाप कर रहे हो, आज तुम्हें एहसास है कितने पाप कर रहे हो। कहने लगे उस जमाने में राजा महाराजा एक दूसरे के पास गुप्तचर छोड़ते थे। गुप्तचर क्यों? खबर लेने के लिए कि वो राजा क्या तैयारी कर रहा है, और जिसके मुखबिर सबसे काबिल होते थे उस राजा की जीत हो जाती थी, क्योंकि उसे पूरी खबर पहले मिल जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी यही है, मीडिया का युग है। एक देश दूसरे देश पर निगरानी रखता है, और जिसकी खबर सबसे पहले पहुंच जाती है जिसके पास, उसकी जीत हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर सिखों को समझाया, संगत को। कहने लगे इस वाणी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने तुम्हें खबरदार कर दिया। घर तुम्हारा पहले भी लूटा जा रहा था, काम क्रोध लोभ अहंकार भीतर से तुम्हें लूट रहे थे, पर पहले एहसास नहीं था।
अब तुम्हें एहसास हो गया है कि भीतर कोई लूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस घर में आग लगी हो, अगर समय पर खबर पहुंच जाए आग बुझाई जा सकती है, अगर देर से खबर पहुंचे घर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने आपको गुरु की वाणी से, वाहिगुरु शब्द से जोड़कर आपको एहसास करवा दिया भीतर से कि घर में आग लगी है। पहले खबरदार कर दिया, अभी समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एहसास होना कि मन नहीं जुड़ रहा, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एहसास होना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। लोगों को तो सारा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं होता मन जुड़ना होता क्या है। जो आके सवाल पूछते हैं मन नहीं जुड़ता, मन खुश हो जाता है सवाल सुनकर। एहसास तो हुआ कि मन नहीं जुड़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत जो आई थी हैरान हो गई, उन्होंने इस प्रकार कभी विचार ही नहीं किया था। कहने लगे हाँ, ये एक एक बात सच है। नाम जपने बैठते हैं तो एहसास होता है कि कितनी गलत काम किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पातशाह, संगत ने सवाल किया, पातशाह पर सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा अब एहसास करते हुए ही कि मन जुड़ता नहीं? कहने लगे नहीं, पर ये मत पापा के संग ओ तो पै। कहने लगे इस मन को जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जैसे जैसे आप जपते जा रहे हो वो मैल उतरते जा रही है, तभी तो एहसास हो रहा है। कहने लगे आज आप हमें दो जुक्तियां बताती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने यहाँ पर संगत को दो बड़ी प्यारी जुक्तियां बताई साथ संगत जी, कि इस प्रकार से नाम जपना मन जुड़ना अब शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है, इस ज्ञान को लेना ना आज बहुत ही अलग ढंग से समझाया गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने दो जुक्तियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ लिया। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने समझाया, कहने की ये वाणी जब आप रोज पढ़ते हो इससे मैल की परतें जन्मों की उतरनी शुरू हो जाती है। अब मन जोड़ने का तरीका समझो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे, जब किसी को कोई बहुत प्यार करता है, वो प्यारा घर में आ जाए, ध्यान देना, जिसे कोई बहुत प्यार करता हो, बहुत सालों से उसकी इंतजार कर रहा हो, वो प्यारा मिल जाए, घर में आ जाए, तो उसकी कोशिश होती ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ अकेले बिताने को मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ना आए उस वक्त, अकेला समय मिल जाए उस प्यारे के साथ। कहने लगे गुरु नानक से प्यारा कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने समझाया कि वाणी पढ़ते वक्त मन को कैसे समझाना है। मन को समझाओ कि गुरु नानक से प्यारा कौन है। जब पाठ करने बैठते हो, यानी कि वाणी आ गई, वाणी भीतर आ गई, वाणी कौन है? गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं वाणी और गुरु में कोई भेद नहीं। जब वाणी पढ़ने बैठे हो, कहने का भाव भीतर गुरु आ गया है। अगर मन में ये भावना बना के वाणी पढ़ोगे कि गुरु नानक आ गया हृदय में, अब किसी ख्याल को मैं भीतर नहीं आने दूंगा, अकेले समा चाहिए मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से वाणी पढ़ो कि गुरु नानक आ गया है भीतर, अब गुरु नानक के साथ समय गुजार रहे हो। कहते थे ये भावना बनाकर नाम जपना शुरू करोगे, मन जुड़ जाएगा, कोई दूसरा ख्याल भीतर नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, एक तो होता है मेरे जैसा एक आदमी एक बात कहे, एक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार भावना बनाकर अगर नाम जपोगे तो मन जुड़ेगा। उनके वचन हैं, अगर इस प्रकार भावना बना के नाम जपेंगे मन जरूर जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई प्यारा घर में आए,
तो इंसान की कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ अकेले बैठकर गुजारे। गुरु नानक आ गया बाणी पढ़ते समय। अगर ये भावना बनाई गुरु नानक आया है, ये बाणी गुरु है, अब मैं इसके साथ एकांत में समय बिताना चाहता हूं, तो कोई ख्याल, किसी की हिम्मत नहीं होगी भीतर आने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ जाएगा। दूसरा वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। कहने लगे भोजन खाने में स्वाद कब आता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब आता है? एक जिसका पेट भरा उसके सामने 36 पदार्थ रख दो, कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा। जिसे भूख लगी है सूखी रोटी सामने रख दो, वो भी अमृत की प्रकार लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने वचन किए, अब तक स्वाद नहीं आ रहा, नाम जपने में रस नहीं आ रहा, समझ लेना अब तक भूख ही नहीं लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख ही नहीं लगी है। भूख लगी हो, जो लोग आके पूछते रहे नाम कैसे जपना है, यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, कहते थे हंसी आती है उसके ऊपर जो आके पूछता नाम कैसे जपना है, क्योंकि भूखे को भूख लगी है, उसके आगे थाली रख दो, वो पूछता है क्या कैसे खाना है, वो तो टूट पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे भूख लग गई, प्यास लग गई, वो तो खाना खाने लग जाएगा, वो तो जपने लग जाएगा। ये जो पूछते हैं कैसे जपना है, इन्हें भूख लगी नहीं, नखरे हैं ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी में ये पंक्ति आती हैं कि ये भूख भी उससे मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज करते हैं, रोज। आओ पढ़ लें। तोर भजन की रहे प्यासा, 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 तोर भजन की रहे प्यासा। ये मांगा गया है बार बार मांगा गया है। वाणी में ऐसी कई पंक्तियां हैं कि पातशाह तरस कर, तेरे नाम की प्यास, तेरे नाम की भूख लगी रहे, क्योंकि भूख लगेगी तो स्वाद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपने में रस किसे आएगा? जिसे तड़प होगी जपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन खाने में रस किसे आएगा, स्वाद किसे आएगा? जिसे भूख लगी होगी। नाम जपने में रस उसे आएगा जिसे नाम जपने की प्यास लगी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती हमारी है, प्यास हमें नहीं लगी, दोष गुरु पे डालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम कैसे करते हैं हम? मेरे समेत मैं अपने आप को बीच में ले रहा हूँ। हम लोग नित्यनेम कैसे करते हैं? जैसे एक काम निपटाना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल तो मैंने कईयों को देखा है, मेरे घर में भी मेरे भाभी हैं, वो पाठ को स्पीड होती है ना आजकल यूट्यूब में, 5 बाणी को पाठ को डबल स्पीड में करके खत्म कर देते हैं सुनकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या समझा रहे हैं कि इस प्रकार से सुनो बैठकर, इस प्रकार से कि गुरु नानक आया है। हम रस कहाँ लेते हैं? हम काम खत्म करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहते हैं मन टिकता नहीं। मन टिकाते ही कहाँ है? कोशिश भी कहाँ करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, इसीलिए ये पंक्तियां हैं क्या? बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत मन तन त्रपिए, पी अमृत मन
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा नंद सिंह जी। जिनकी वजह से ये कीर्तन हो रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके पास कुछ तरखान कारपेंटर्स इकट्ठे होके आ गए, जिनका कारोबार कारपेंटरी का था, तरखान थे। बाबा नंद सिंह जी का स्वभाव था कि जब भी कोई आता, ये नहीं पूछते तेरा कारोबार क्या है, ये नहीं पूछते तेरा परिवार कितना है, पूछते थे तेरा गुरु से प्यार कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नित्यनेम क्या है। बाबा नंद सिंह जी को जैसे ही इन्होंने आके माथा टेका, बाबा नंद सिंह जी ने पहला सवाल किया, नित्यनेम क्या करते हो भाई, कितने बजे उठते हो सुबह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें झुक गई। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, बताओ भाई। जानते सब हैं पर पूछ रहे। हाथ जोड़ दिए, पातशाह हमारा बड़ी मेहनत का काम है, पूरा दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर थक टूट जाता है, सुबह नहीं उठा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने का समय नहीं मिलता, नहीं निकाल पाते, मुश्किल से गुजारा होता है इतनी मेहनत करने के बाद, हमारे पास समय नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच बोल दिया महापुरुषों के आगे, झूठ नहीं कहा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, अगर नाम नहीं जपाना तो ना यहां कोई पूछेगा ना वहां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी गरीबी में जीवन बिता रहे हो, अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि सब कुछ नाम के आश्रय खड़ा है। पहले बीजा नहीं है, अब खा नहीं रहे, अब भी नहीं बीज रहे, आगे तो भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, पातशाह आप कृपा करो, हम थक जाते हैं काम कर करके, कैसे जपे नाम। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, अगर नाम जपने का समय नहीं है तो अपने काम को भक्ति बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दिए, पातशाह काम को कैसे भक्ति बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझ लेना। बहुत हर एक के काम की बात है एक्चुअली। बहुत लोगों का ये होता है कि हमें समय नहीं मिलता। एक बहुत अमीर आदमी बाबा नंद सिंह जी के पास आ गया था, बहुत अमीर आदमी, इतनी दौलत। उसके साथ जो सेक्रेटरी थे बार बार बाबा नंद सिंह जी से कह रहे थे, ये बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है, इसकी बड़ी पहचान है, इसकी बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच है, कोई काम हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ। बाबा नंद सिंह जी चुप रहे, बार बार बोल रहा था। आखिर में बाबा नंद सिंह जी ने उससे पूछा, तेरा नित्यनेम क्या है। कहने लगा, नित्यनेम होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, तेरे सेक्रेटरी बार बार कह रहे हैं कि तू बहुत बड़ा आदमी, मेरी नजर में तेरे जैसा कंगाल कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा, पर मेरे पास समय ही नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जैसे सुबह उठता हूँ बड़े बड़े नेता नीचे खड़े होते हैं घर के बाहर, वो मेरी वेट कर रहे होते हैं, मैं पास समय नहीं नाम जपने का। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, बिल्कुल समय नहीं। कहने लगे, जब बाथरूम में जाता है तब क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वहीं जप लिया कर, पर जप लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, यही बात बाबा नंद सिंह जी ने तरखानों को समझाई। कहने लगे, अपने काम को भक्ति बना लो। उन्होंने सवाल किया, कैसे। कहने लगे, काम क्या करते हो। कारपेंटरी का। कहने लगे, तरखान का। कहने लगे, आरी चलाने का काम है ना, आरी चलानी पड़ती, लकड़ी काटनी है। कहने लगे, हाँ। कहते, आरी जब आगे जाए वाहे, आरी जब पीछे आए गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जितनी भक्ति तुम कर लोगे 8-10 घंटों में, उतना तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। बाबा नंद सिंह जी समझाने लगे, हर बार जब आरी चले, श्वासों के साथ चले वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारा नित्यनेम बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुरु की कृपा हो जाएगी। आज आरी चला रहे हो, कारखाने चलाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वाहिगुरु शब्द को पकड़ लो। कितना बड़ा ज्ञान है साथ संगत जी। महापुरुष समझाया करते थे। कई लोग ना, एक उदाहरण, एक सच्ची घटना थी अमृतसर साहिब की, महापुरुष बताते थे। दास ने शायद पहले सुनाई भी है कभी, कि 2 लड़के, दोनों को अमृतसर से लुधियाना का जॉब लग गया, लुधियाना जाना पड़ेगा। अब वहां से लुधियाना जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते ट्रेन में ना, कितना समय लगता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। दोनों लड़के महापुरुषों की संगत करते हैं, एक ही महापुरुषों की। नाम भी दास बता देता है, भाई साहब भाई गुरकबाल सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
कहने लगे एक लड़का तो बड़ा खुश, दूसरा रोता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, हमने उसे बुला के पूछा जो रोता रहता है, कहते हैं रोता क्यों रहता है, उदास क्यों रहता है? कहने लगे 2.5 घंटे का सफर जाना है, 2.5 घंटे का सफर आना, 5 घंटे तो यही निकल जाती है दिन में, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 घंटे की जॉब बचा क्या मेरे पास? तो कहने लगे मैं विचार में पड़ गया, दूसरे लड़के की भी वही जॉब लगी है, वो बड़ा खुश है, उसे बुला के पूछा भाई तू इतना खुश क्यों रहता है? कहने का गुरु ने बड़ी कृपा कर दी। सोच में फर्क देखिए, गुरु ने कृपा कर दी। पहले मेरे पास नित्यनेम बढ़ाने का मन करता था, समय नहीं था, अब 5 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। 2.5 घंटे जाते वक्त, 2.5 घंटे आते वक्त। जाते वक्त भी वाहिगुरु शब्द में लीन हो जाता हूँ, आते वक्त भी सफर कैसे खत्म होता है पता नहीं, और नित्यनेम मेरा बढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे पूछा किस प्रकार सफर करता है? कहने लगा जब गाड़ी चलती है, गाड़ी की एक आवाज होती है चलने की, उसके साथ मैंने अपने श्वासों को मेल लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस गाड़ी के चलने के साथ छुक 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 जो आवाज होती है गाड़ी की, उसके साथ मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु को मेल लिया है। अब जैसे ही गाड़ी शुरू होती है मेरा सिमरन शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिचुएशन दोनों के लिए एक सी है, पर मन की वृत्ति दोनों की फर्क देखिए। एक प्रसन्न है कि समा मिल गया, एक रो रहा है कि समा वेस्ट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने तरखानों को समझाया अपने काम को भक्ति बना लो, और यही घटना गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की भी है। एक लोहार आ गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उससे यही पूछा भाई नित्यनेम, कहने का समय नहीं मिलता। कहने की जब चोट करता है लोहे पर, हर चोट के साथ कहे वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो सच्ची घटना है, ये मेरे पहचान वाले ही हैं जिनकी दास बात कर रहे हैं। इतनी कृपा है उनके ऊपर, इतनी कृपा है, चेहरे पर नूर रहता है, नूर, जैसे नाम सिमरन अंदर बस गया हो। और काम क्या है? बैंक के कैशियर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैंक में कैशियर, एक जुगती अपना ली, केवल एक जुगती। क्या? महापुरुषों ने उन्हें समझाया था। बैंक के कैशियर थे, पूरा दिन कहते करोड़ों रुपए गिनने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए। महापुरुष कह रहे गड्डी कितनी देर में गिन लेता है? क्या लेगा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, आप अलग अलग हिसाब है। कहने लगे अगर यही गड्डी तू गिनते वक्त साथ में हर नोट के साथ वाहिगुरु कहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो तेरा नित्यनेम तो समझ 10 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, पर तेरा नित्यनेम कितना बढ़ जाएगा। इतना वाहिगुरु सिमरन तो कोई कर ही नहीं सकता। तेरे 8 घंटा काम, तेरी 8 घंटा भक्ति बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कहने के मुताबिक कहने लगा जब से ये मुझे जुगती मिली है, मैं हर नोट के साथ वाहिगुरु कहता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, 2 4 5 सेकंड गिनते वक्त, पर इतना रस हो गया, काम बंदगी बन गई। अब काम नहीं लगता, काम में जाने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये करना क्यों है? ये क्या रिंकू कह रहा है, भाई गुरप्रीत सिंह कह रहा है, आपको बहुत लोग टोकते होंगे कि बार बार नहीं जपना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उसे कहो ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बारंबार बार प्रभु जपिए, कि बार बार जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बार बार जप। क्यों? पी अमृत ए मन तन तृपिए। ये नाम का रस तेरे भीतर अगर चला गया, अमृत बन गया, अमृत बन के तेरे भीतर चला जाएगा, जिस दिन तेरा मन और तन तृप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
दुर्योधन ने शिकायत की अपने गुरु से, द्रोणाचार्य जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत की द्रोणाचार्य जी से कि आपने अर्जुन को विशेष ध्यान दिया है, अर्जुन पर। हम सब आपसे सीखते हैं, पर आपने अर्जुन पर विशेष कृपा की है। उसका तीर निशाने पे लगता है, कभी निशाना चूकता नहीं, और हमारा कभी कभार लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गलत है। गुरु को इस प्रकार शिक्षा नहीं देनी चाहिए, सबको एक समान देनी चाहिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जवाब दिया बड़ा प्यारा, कहने लगे दुर्योधन, कहने लगे मैं संकल्प लेता हूं इस बात का कि मैंने आज तक अपने किसी भी शिष्यों में भेदभाव नहीं किया। शिक्षा देते वक्त सबको एक समान, एक निगाह से शिक्षा दी है। पर जब मैं अपनी शिक्षा देकर खत्म कर देता हूं ना, आप तुम सब लोग खेलने चले जाते हो। खेलने चले जाते थे, पर अर्जुन खेलने नहीं चला जाता था, वो अभ्यास में लग जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर नहीं बैठ गया, वो मेरी दी हुई शिक्षा को लेकर अभ्यास करता रहा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन गया वो। इस बात ये मिसाल है साथ संगत जी। सुनते सब है यहां बैठकर, यहां पर बैठकर हम सब सुनते हैं कि कैसे नाम जपना चाहिए, क्या करना चाहिए। दास रोज ये बात कहता है, पर कोई विरले होते हैं जो अभ्यास में लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरले होते हैं जो मोबाइल को छोड़ पाते हैं आज के जमाने में। पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 चीजें थी। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं कलयुग का इतना जोर है, 10 चीजें और निकाल दी है उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको छोड़कर नाम सिमरन में मन लगाना कोई सूरमा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो उसकी बनेगी जो अभ्यास करेगा, श्वासों के साथ सिमरन को मेलने की कोशिश करेगा। बात उसकी बनेगी, केवल सुनने से नहीं, मानने से भी नहीं, उस पर चलने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया करते थे महापुरुष। कहते थे, आपको शायद ज्ञात हो इस बात का, जब शेर को पकड़ लेते हैं ना जंगल में से, उसे पालतू जब बनाना होता है, शेर है खतरनाक, किसी के बस में आता नहीं, छोड़ देंगे, ट्रेनिंग देने लगेंगे तो मार डालेगा, 1 मिनट में मार डालेगा। तो वो क्या करते, कई दिनों तक उसे भूखा रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो शेर को ट्रेनिंग देते हैं कई दिनों तक भूखा रखते हैं ताकि वो कमजोर पड़ जाए, उसकी हिम्मत ना रहे लड़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत थोड़ा भोजन देते हैं कि केवल जीवित रहे, फिर उसे ट्रेनिंग देते हैं कि हमला करने की ताकत ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, ध्यान से सुनना। शेर को भूखा रखा जाता है कमजोर करने के लिए ताकि वो लड़ ना सके। कहते थे सिख की ताकत है गुरु की बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिख की ताकत है गुरु की बाणी। अगर बाणी कम हो जाए पढ़नी, सिक्खी वैसे ही खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल कितने प्रचारक हैं, कितने ही प्रचारक जो ये कहते हैं ज्यादा बाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा नाम जपने की जरूरत नहीं। कहीं मिल जाएंगे आपको ज्ञानी ध्यानी, वो चाहते हैं कि कमजोर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ताकत क्या है, गुरु की बाणी। अगर ये ना होता, ये पंक्तियां ना होती। आज जितने भी वाहिगुरु शब्द में प्रमाण लगाए सब यही है। साथ साथ सिमरो, दम दम सदा संभालदा, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, उचरो राम नाम लख बारी, लाख बार जप करोड़ बार जप, जपता रहे बारंबार बार प्रभु जपी है। क्यों? इतिहास पढ़ लो। इतिहास में जितने भी सिख हुए हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बाबा दीप सिंह जी जैसी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं मिलती। मर के भी नहीं मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शीश तली पर रखकर जिन्होंने युद्ध किया, अपना शीश तली पर रखकर।
सबसे ज्यादा ताकतवर कौम पता कौन सी गिनी जाती है? सबसे ज्यादा ताकतवर मरहट्टे, मराठी भाई जो हमारे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका नाम मराठे पड़ा क्यों था? कि मर के ही हटते थे मैदान से, जीते जी नहीं हटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिवाजी के समय जब वो लड़ते थे, मर के ही मैदान से हटते थे, जीते जी नहीं हटते थे। इसके नाम, इसलिए उनका नाम पड़ा मरहटे, मर के ही हटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाबा दीप सिंह जी की मिसाल देखिए, मर के भी नहीं हटे, शीश तली पर रखकर। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सारे महापुरुष ये बात बताते हैं, सारे जितने भी हैं कहते थे, पर इसके पीछे ताकत क्या थी? बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो, वो कमरे आज मौजूद हैं जहां पर बैठ के पूरी रात बैठकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी की ताकत थी। भाई बचित्तर सिंह, जिसने मस्त हाथी को एक वार से मार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भेजा था। बड़े बड़े सूरमा डर के भाग आए थे। बचित्तर सिंह पतला सा आदमी, एकदम पतला सा कमजोर सा दिखने वाला आदमी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पीठ पे हाथ रख के कहा, जा तू मार के हाथी को। क्योंकि मुगलों ने हाथी के सर पे ढाल बांधकर उसे शराब पिलाकर भेज दिया था कुचलने के लिए। बहुत बड़ा हाथी था, मस्त करके उसे किसी से कंट्रोल में नहीं हो रहा था, फौजों को रौंदते जा रहा था। जब इतने पतले से, इतने से कमजोर आदमी को पीठ पे हाथ रख के भेजा, इसने एक बार मारा, हाथी के नेजा अंदर गया हाथी के माथे पर, और हाथी उल्टा होकर अपने निशाने को कुचलते हुए भाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों ने यहाँ पर शिकायत की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, पातशाह आपने इसके ऊपर विशेष कृपा की, इसके पीठ पे हाथ रखा आपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जवाब दिया, हमने कोई विशेष कृपा नहीं की इसके ऊपर। इसका नेम है अमृत वेले उठ के 21 बार जपजी साहब जी के किए बिना ये पानी नहीं पीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ताकत इस चीज की है, वाणी की। जो लोग कहते हैं ना कि मांस खाने से ताकत आती है, वो सुन ले ध्यान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत और हिम्मत में फर्क होता है। हो सकता है मांस खाने से ताकत आ जाए, एक बार मान लो, हिम्मत कहां से लाओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत को समझो। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तंत्र पिए। बारंबार बार प्रभ जपिए, बारंबार बार प्रभ जपिए। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए। बारंबार बार प्रभ जपिए, बारंबार बार प्रभ जपिए। बाबा नंद सिंह जी अमृत वेले के बाद ना रोज सैर करने जाते थे, वॉक करने। एक बार वो जब सैर कर रहे थे, उनके साथ पीछे कुछ सेवादार भी और थोड़ी संगत भी साथ में। बाबा नंद सिंह जी बहुत तेज चलते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लिखारी लिखता है कि सेवादारों को आवाज आई लगातार, कि कौन सी आवाज? धन गुरु नानक, 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 धन गुरु
गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार यहाँ वहां देख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। संगत भी हैरान है कि आवाज तो आ रही है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब ध्यान दिया, तेज चले, डाउट आया। जब पास में गए बाबा नंद सिंह जी के पास में, हर कदम के साथ धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कदम के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, धन गुरु नानक की आवाज, श्वासों के साथ। दूसरा कदम धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले अमृतसर साहब से हजूर साहब तक पैदल चलकर जाते थे। हर कदम के साथ वाहिगुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है महापुरुषों का जीवन, ये जुगतियां है साथ संगत जी, इसे अपना लो। ये तभी हो सकता है कुछ, ये चालिया करने का लाभ तो तभी है। नहीं तो महापुरुष कहा करते थे कि कीर्तनिया गाकर चला जाएगा, संगत सुनकर चली जाएगी। लाहा केवल वो लेगा जो उस पर चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूं कि हम महापुरुष नहीं, संत नहीं कि पूरा का पूरा उसके ऊपर चल सकेंगे। कोशिश तो करें, 10%, 20%, 5%, थोड़ा तो चले। कृष्ण जी ने कहा था ना, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करना सबसे बड़ा अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश जरूर करें, हाथ जोड़कर दास की बेनती है। अभी भी जाकर घर में 15-20 मिनट सिमरन करके श्वासों के साथ फिर आराम कर सकते हैं। कोशिश जरूर करें। दास तो कहेगा आने से पहले करके आओ, पर जब भी समय मिले, दिन में भी 10 समय निकालो। दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, चिंता छोड़ के चिंतन करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे घूम के देख लिया करो दुकान पे, दादा की फोटो लगी है, वो भी टेंशन लेते थे दुकान की। पिताजी की फोटो लगी है, वो भी टेंशन ले लेके चले गए। अब तू टेंशन लेके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भी चला जाएगा, दुकान उधर ही रहने वाली है, दुकान चलती रहेगी। चिंतन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम। कहो नानक जन के सदकाम, कहो नानक जन के सदकाम। कहु नानक जन के सदकाम, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए।
जपिए बारंबार बार प्रभु 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 जपिए पी अमृत मन तन पी अमृत मन तन तृपिए बारंबार बार प्रभु जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए प्रभु जपिए धन गुरु नानक। हमरी करो हाथ दे रक्षा हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा 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 तब चरना ने मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कारो आप हाथ दे मोहे बचाओ सुखी बचे मोरो परिवार सेवक शिक्षक करतार मोर अच्छा निज कर दे करिए सफल उपवास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर पूजन की रहे प्यासा में छाड़ कोई अवर न ध्यान जो पर जाऊं सब दे पाऊं सेवक सिक्का मार कार्य चित्तों सतर हमारे मारे आप आते मुझे उबरिए मरण काल का त्रास करिए पूजो सदा हमारे रक्षा श्रेय जो करे आत्म उमर राखना रे साई संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट के हता वो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए संयोग करा काल पाए कल वितर प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की रोमेंद्र ब्रह्मा ज्योति जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत्य दक्षिण उपजायो आदंत एक अवतारो श्री गुरु संजो हमारा नमस्कार तिसे ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सुहाए सिरकल को सिर को सुखदेव सतर को पर मोहन की कट कट के अंतर के जानत भले बुरे के पीर पछानत चीटी ते कुल चरस तोला हरि कृपा दुष्ट बोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद कर्क करा करता प्रजा दर्द तब देह अपारा जब आकर कर कहो कहो तुम मैं मृत देह कर सब जे जे बदन सिर सब तारे आप अपनी हो
तुम सब ही तेरे निराला जानत भेद भेद निरंकार निरंकार निर्लम्ब राग नीलनाद संग ताका मूड उच्चारत भेदा जाको प्रेम न भावत भेदा ताको कर्पान निर्माण महामूड कछ भेद न जानत महादेव को मैं किसना से निरंकार का जीनत नहीं आप अपनी बुध है जेते वर्णत में तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग पयोरा कई को अंडज जेरज सेतज कीनी उठबुज खान बहुल रच दीनी कहूँ फूल राजा पर बैठा कहूँ सिमट शंकर कहता सगरी सृष्टि दिखाए जब आदिवाद स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वाला शिक्षण दुष्ट जिते अटुआत पाता सकल मलेच करो रणदाता जे अस्त्र सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार दे है ताके काल मिट नहीं है रक्षा हुए तहे सबका दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन दया निहर हो ताके लाभ तन मोहर हो रित सिद्ध कर्म हो सब होए दुष्ट चार चर सके न को एक बार दिन तुम्हें संभारा काल वास्ते तारे माता दिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे रो बारी सर्व ठोर मोह हो सारे दुष्ट दोख तेरे कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण समता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को चय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ कर मन वांछित फल पावै सोई दुख नग से पर कोई अड़े सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे पौ जो या की एक बार चौपई को कहे दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे पौ जो आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाए सतगुरता पाया सहज से थी मन वधिया वरान राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आया शब्दोता गावो हरे के रवानी वसा कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दूर सब सारना अंगीकार हो करे तेरा कर सब सवारना सब नागला सुरत स्वामी सुख अनुसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरे सक जय तेरे सो पावन सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन उसे आवाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाया कर शाम सुख मन आयो से आज नहीं सब बुझा सदा कुर्बान किता गुर बैठो जिसनी आए वडियाया कह नानक सुनो संतोष तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कार सभा के शब्द वाजे कला हित करतारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर पाया तुझ जिनको से नार के लागे कह नानक तैस भोवत करन हदवाजे अनंत सुनो बट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर दया पर पूरे बिन मन नानक पुर चरण लागे भाई अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत्मात देव सराज दाई दाया सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया बाजे धर्म दूर कर्मिया पोया अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक दे मुख उजले के छुट्टी नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह किन्ना दिता है तू रब्बा किवें जिक्र करावे हर दम हर वेले
तेरा शुक्र करा मैं, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। सारे शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। 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 दिन रात मैं तेरा शुक्र करा, पल में तेरा शुक्र करा। जग होवे हनेरा, शुक्र करा, जग होवे सवेरा। शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा, शुक्र करा। कुछ भी नहीं मेरा। शुक्र करा, कण कण विच तेरा, शुक्र करा। सदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। 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 मैं तेरा शुक्र करा, मैं तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो,
हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन